बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नेहा सालिक। आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान OIC में खिताब के दौरान उदास हो गए, दिल रोने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान OIC में जज्बाती। Because as I repeat, chaos in Afghanistan suits no one. Chaos in Afghanistan suits no one. And finally, because I have this platform of the OIC foreign ministers, I would just raise two more points. One is Palestine and Kashmir. The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them and unfortunately not implemented. We should on every forum raise our voices and a unified stance. And lastly, I want to talk about Islamophobia. Unfortunately, the refugee crisis in Western countries has exacerbated Islamophobia. Islamophobia really started reaching a dangerous levels after 9/11, when terrorism and Islam were connected, when terms like radical Islam came. They connected somehow. Islam was responsible for terrorism and radicalization. So this connection has made life difficult for people living in Western countries, Muslims living in Western countries. The man in the street in the West cannot distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim. So you have stuff like in New Zealand, a man walks into a mosque and shoots 50 people. It's because this term, radical Islam, Islamic terrorism, they have to be delinked. And secondly, the reason for Islamophobia is people in the West do not understand when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims because their attitude to religion is different to ours. So it's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world on forums like European Union, United Nations, their think tanks, making them understand. Rather than this gap growing between Muslims and non-Muslims because of inability to understand Islam, it is our responsibility in the OIC that we make them understand. We have in Pakistan formed an authority. It's called Rahmatul Alameen Authority. The purpose is to have top Pakistani scholars in this authority who coordinate with Muslim scholars all over the world. And one of the objectives of this Rahmatul Alameen Authority is that there should be a considered intellectual response when things like a cartoon appears insulting our Holy Prophet, peace be upon him. There should be a proper response from scholars to make them understand why Muslims react, that the love and reverence we have for our Holy Prophet, peace be upon him, because they don't understand this. And secondly, to make them understand that our Holy Prophet was called Rahmatul Alameen. He was to bring mercy for mankind. He was not called Rahmatul Muslimeen. He was not just for Muslims. Just like our God, Allah, is God of all human beings. So, our Prophet united human beings. His whole message was of love. But this is not, the people in the West do not understand this. There is so much propaganda against Islam. And unfortunately, we do not have a coherent
and an intellectual, scholarly response to this. So one objective of this authority is to, in coordination with all the Muslim scholars, we will respond, and we would like the OIC Secretary General also to know about this response. We will consult you. And whenever anything happens, there should be a proper response to that. But secondly, it's also for my own country, because we feel that we can raise the morality and the ethics of our society by making people understand the seerat of the Prophet, his teachings, to raise the ethical standards in our country, and at the same time unite our people. Because unfortunately, religion is used by elements in our society to divide people, spread hatred. The whole idea is to unite human beings under the teachings of our Prophet. So finally, I again welcome all of you. I hope we have a very productive session this afternoon, and then we come up with a very coherent a strategy, which I said immediate, medium term and long term, how to get Afghanistan out of this crisis. Thank you. एशियन इंडिविजुअल स्क्वाड चैंपियनशिप 2021 इख्तिताम पजीर। दिसंबर 2021 पाक फिजाइया के ताउन से मर्दों और खवातीन की 21वीं एशियन इंडिविजुअल बीज स्क्वाड चैंपियनशिप से जैसे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया था, इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई। टूर्नामेंट में मर्दों और खवातीन के मुकाबलों में पाकिस्तान समेत हांगकांग, ईरान, कुवैत, मलेशिया, कतर, सिंगापुर और श्रीलंका के 48 खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और रेफरीज ने हिस्सा लिया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद और इंतजामात की भरपूर तारीफ की। खानेवाल से काशिफ सिद्दीक चौधरी के मुताबिक खानेवाल अलकैफ पिज़्ज़ा शॉप पर गैस सिलेंडर धमाका, 5 अफराद झुलस गए, 4 निश्चित अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। खानेवाल से काशिफ सिद्दीक चौधरी के मुताबिक मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, ये हक की जंग थी, 100 में लड़ी, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहतरमा नौरीन नुशाद खान डाहा साहबा, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, आपकी हिम्मत को सलाम, हम आपके साथ हैं और आइंदा भी आपका भरपूर साथ देंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप अपने मकसद में कामयाब होंगी और खानेवाल की खिदमत करेंगी। बिहाड़ी से रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक कमिस्ट एसोसिएशन लंदन के ज़ेर एहतमाम ज़ेर निगरानी हानी अंजुमन ताजिरान लंदन मोहम्मद सईद अफजल कमिस्ट इत्तेहाद कन्वेंशन 2021 का शानदार इनेकाद, जिला भर से कमिस्ट बिरादरी की शिरकत, महकमाना और हुकूमती मसाइल के हल के लिए मुशावरत, कमिस्ट की दुनिया में शेड्यूल को ख़त्म किया जाए, मुआशी कत्ले आम को रोका जाए, कैटेगरी की बिला इम्तियाज तफरीक को रोका जाए। जिला बिहाड़ी के कमिस्ट यूनियन के सदर और सेक्रेटरी ने अपना इजहार ख्यालात किया। मेहमान खसूसी एजाज सुल्तान बंदेशा MPA ने नाजायज़ पाबंदियों और मसाइल के हल के लिए साथ देने का अज़म किया। अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद इकबाल कमाला ने ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने भी कन्वेंशन में शिरकत की। कहोटा राजा साजिद जंजुआ, RNN न्यूज़। कहोटा में गैस हीटर ने नौजवान की जान ले ली। थाना कहोटा के इलाके PAF रोड पर कमरे में गैस भरने से मकामी दुकानदार मलिक मुदस्सिर और मलिक फरहान अल मदीना मेडिकल स्टोर वाले का भाई मलिक वसीम अख्तर दम घुटने से जाँ बहक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक थाना कहोटा की हदूद में वाक़े इलाके पे PFI रोड के रिहायशी मलिक वसीम अख्तर ने रात के वक्त गैस का हीटर खुला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से कमरे में गैस भर जाने से दम घुटकर जाँ बहक हो गया। मलिक वसीम अख्तर की नमाज जनाजे में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कराची थाना इत्तेहाद टाउन की जबरदस्त कार्रवाई, 3 स्ट्रेट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, गैर कानूनी असला बरामद।
गिरफ्तार मुल्जिमान थाना मोचको, थाना सईदाबाद, थाना बल्दिया, थाना मदीना कॉलोनी, थाना शेरशाह और थाना साइड ए और बी के इलाकों में वारदातों में शामिल हैं। जिला के माड़ी एसएसपी फिदा हुसैन जावरी के अहकामात और एसपी बल्दिया कैप्टन फिजान अली के हिदायत पर स्ट्रेट क्रिमिनल्स के खिलाफ एसएचओ इत्तेहाद टाउन सब इंस्पेक्टर अय्याज खान का जबरदस्त एक्शन। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक एसएचओ इत्तेहाद टाउन सब इंस्पेक्टर अय्याज खान ने बढ़ती हुई स्ट्रेट क्राइम्स की वारदात पर अफसरान बाला के हुक्म मुताबिक नफरी को हिदायत जारी की कि मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सवारी और डबल सवारी अशखास पर नजर रखें। बिलखसूस 1 to 5 मोटरसाइकिल पर सवार अशखास की तलाशी लें। लिहाजा पेट्रोलिंग पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी तो मकाम X23 बस स्टॉप गुलशन गाजी नस कब्रिस्तान खारजी रास्ता बराए जिला गरबी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अशखास को मुश्तबा जानते हुए रोक कर नाम दरियाफ्त किए और तलाशी ली तो शान वल शेर अहमद की जामिया तलाशिया से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा 3 राउंड, परवेज वल गुलाम सरवर की जामिया तलाशिया से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा 2 राउंड, अबरार वल सैयद रिजाल की जामिया तलाशिया से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर 2 राउंड बरामद हुए। असला लाइसेंस पेश न करने पर हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने दौरान इंट्रोगेशन बताया, हम बल्दिया टाउन और साइड टाउन के इलाकों में वारदातें करते हैं। मुल्जिम शान बल्दिया का रिहायशी है जबकि दिगर 2 मुल्जिम का ताल्लुक लांडी और डालमिया से है। वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला असला मुल्जिम शान फराहम करता था और वारदात के मुल्जिमान को मुल्जिम शान पनाह भी फराहम करता था। लिहाजा गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात बिल तरतीब 706 ता 708 साल 2021 बजुर्म दफा 23A के तहत अंदराज किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान को बराए तफ्तीश सपुर्द तफ्तीशी काम किया गया और दीगर थाना जात को इनके मुकदमात में मुलविस होने की बना पर तफ्तीश करने की इतला दी गई। गिरफ्तार मुल्जिमान की अगर सही मायनों में तफ्तीश की जाए तो सनसनीखेज इंकिशाफात की तवक्को है। कहोटा बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब का 2 टोक मौक़ूफ़। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है जी और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात, उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं हैं। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। कराची एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर शेख ने 2 एसएचओज के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर पी शब्बीर हैदर को एसएचओ सदर से एसएचओ साहिल तैनात कर दिया और एसएचओ साहिल इरफान म्यू को एसएचओ सदर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।
महंगाई की वजह से केपी बल्दियाती इलेक्शन हारे, तहरीके इंसाफ का एतराफ। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत इस किस्म के इल्ज़ामात से बड़ी ज़िम्मा है अल्लाह के फजल से। सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान हैं बिल्कुल। हम तो उस वजह से आप लोग हारे हैं? देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है महंगाई। मेयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया क्या? वो इलेक्शन कमीशन से पूछा है, मुझसे पूछ रहे हैं। शौकत साहब ये बताएं, मेयर जो अहम हर किसी की नजरें जमी हुई है वहाँ पर भी PTI को तो शिकस्त दो चार होना ऐसा लगा है। भाई हुकूमत हमारी है, सुबह में कम से कम आप अप्रिशिएट तो करें ना। लोग कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। हम तो किसी किस्म की हमने तो साबित किया है। देखिए महंगाई है, बिल्कुल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है और इमरान खान को इस चीज़ का एहसास है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। कराची एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध और सिंध रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। सक्खर बाईपास पर कार्रवाई के दौरान ट्रक से मंशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान चावल की आड़ में 69.600 किलोग्राम अफ्यून तहवील में ले ली गई। कार्रवाई के दौरान फहीम और जहीर नामी 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। बरामद होने वाली मंशियात की मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में लाखों रुपए है। तर्जुमान ANF। दूसरी कार्रवाई शहर की निजी कोरियर कंपनी में की गई। कार्रवाई के दौरान मुश्तबा पार्सल से 185 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। मंशियात पार्सल में मौजूद 6 अदद लेडीज बैग में मुहारत से छुपाई गई थी। पकड़े गए पार्सल को मालदीव स्मगल किया जाना था। तर्जुमान ANF।